We welcome you all. Please welcome sir with a big round of applause. Principal, Government Degree College for Women, Kathua, Dr. M.S. Pathan. All our senior retired medical officers who have come here for the celebrations. Bouquet presentation. Round of applause. Round of applause. Thank you. That is the birthday of Lord Dhanvantaris. All fears and diseases from face of humanity. हम के लिए धन्वंतरी वंदना गाएंगे। That shines is telling us few medicines, few scriptures, meditation, and for this Ayurveda Day has declared the nutritional aspects of Ayurveda. Before starting the presentations, I would like to invite our jury members to please have their respective seats, as I am seeing that they are already on their respective seats. So jury members for this session are Dr. Arun Dev Singh Ji, Assistant Professor, Department of English, Government Degree College for Women, Kathua. Please give a big round of applause. So students, before starting the finish your presentation within 5 minutes. 5 minutes के बाद आपके जो judges हैं, they will ring a bell, and उसके बाद आपको next 30 seconds में you have to finish your presentation, otherwise your marks will get cut. So please come on the stage and give her presentation. Mamta Devi, on Ayurveda for Question. मेहमानजन, मेरे कॉलेज के महोदय जी, सभी अध्यापकगण और मेरी प्यारी बहनों, मैं आज यहाँ आपके समक्ष पोषण पर कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। कहीं शहर की जगमग रोशनी, कहीं गांव की हरियाली है, खाने को तो है सब कुछ पर फिर भी कुपोषित जनसंख्या आदि है। कहीं गंदगी, कहीं रोग, कहीं फैली सामाजिक लाचारी है हरियाली खेतों में पर फिर भी कुपोषित जनसंख्या आदि है। कभी बचपन दिवस, कभी लाडली दिवस, कभी लगता सुपोषण, VHSND सा त्योहार, पोषित आहार सरकार तो बंटवाती पर फिर भी कुपोषित जनसंख्या आदि है। मैं आपके समक्ष कुपोषण पर कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। सद हवा पर मर गया है और चौराहे पर बेघर कोई, जानवर की तरह जिंदगी गुजार रहा नर और नारी कोई। आखिर क्यों कोई भूख से बेहाल, कितने बच्चे कुपोषण से बचे क्यों है ऐसा हाल। मंदिर में चढ़ावा, मस्जिद मजार पर चादरें बिछाई, चादरें बेशुमार चढ़ती देखो, और सड़क पर हर मौसम पर चलते कुछ इंसानों की जिंदगी देखो। धन्यवाद। गलत तरीके से उपयोग करने पर अमृत भी विष बन जाता है। Good morning everyone. I am Pallavi Sharma, semester 3rd student of GDCW Kathua. Today I am going to speak on the topic Ayurveda for Poshan Nutrition. First of all, what is Ayurveda? Ayurvedic medicine, Ayurveda for short, is one of the world's oldest holistic whole body healing systems. Ayurveda was developed more than 3,000 years ago in India. It is based on the belief that health and wellness depend on a delicate balance between mind, body and spirit. The National Ayurveda Day is celebrated every year on the occasion of Dhanvantari
which can prove to be a cornerstone for its ultimate globalization. Prevention of disease and promotion of health is the main aim of Ayurveda. Those who practice Ayurveda believe every person is made of 5 basic elements found in the universe. आज हमारे लिए बड़े संतोष की बात है कि यहाँ पर हम जिला कठुआ के अंदर वुमेन डिग्री कॉलेज के अंदर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है जो धन्वंतरि दिवस के ऊपर आयुर्वेदा डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। आयुर्वेद जिस तरह से हम जानते हैं कि ये हमारे वेदों से निकला हुआ ये शब्द है और ये 5000 वर्ष पुराना तो इसका इतिहास है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि 50,000 वर्ष तक पुराना हो सकता है। इसमें जो जितने भी हमारे वेदें हैं, चारों वेदों में इसका वर्णन है और ये लंबे समय तक आयुर्वेद ने जो समाज की सेवा करी है, जो रहा है, कुछ जब से एलोपैथी आई है कुछ प्रयास किया गया है इसको कि एलोपैथी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब से 2005-06 के अंदर ये बनाया गया, आयुष डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 से आयुष को सारे जो हमारे आयुर्वेदा है, जो हमारा यूनानी मेडिसिन है, जो एलोपैथी है, उसके अलावा जो ये सारे 5-6 जो मेडिसिन के जो सिस्टम थे इनको जोड़ के आयुष ये बनाया है और बहुत बेहतरीन ये काम कर रही है। और खासकर इस समय में जब हमारे यहाँ पर जो कोरोना का जो कहर रहा है पिछले दिनों में, उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जो अलग अलग जगह जो रोल प्ले किया है हमारे कठुआ के अंदर जो क्लिनिक बनाए गए हैं आयुष क्लिनिक, वो बहुत ही बेहतरीन इनका योगदान रहा है। और पिछले दिनों से जब से रामदेव जी का जो उन्होंने जब से योगा और जो आयुर्वेद को लेके जो जिस तरह से प्रमोशन किया है, आज हर गली में, आज हर बाजार के अंदर हम देखते हैं कि पतंजलि के जो आयुर्वेद से जुड़े हुए प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं और हमारे जो बहुत सारे लोग हैं उनको इससे रोजगार भी मिला है। और इससे जो हमारी पुरानी साइंस है, जो आयुर्वेदा की साइंस है, जो एक वे ऑफ लाइफ है, जिस तरह से हमारे वेदें इतनी पुरानी हैं, जो वेदें हैं वो वे ऑफ लाइफ हम कहते हैं, उसी तरह से जो आयुर्वेद है ये भी वे ऑफ लाइफ है। और ये आयुर्वेद और योगा जो है कि आपस में सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इसको बढ़ावा मिल रहा है। और जिस तरह से आने वाले समय में इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है न्यू आयुष क्लिनिक और सेंटर जो हैं वो हमारे देहात में, दूर दराज के इलाकों में भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे आयुर्वेदा को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी इसकी जो है फायदा होगा, ऐसा हम जो है विश्वास करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भगवते वासुदेवाय आयुर्वेद दिवस को जयंती की शुभकामनाएं। यहाँ पर मंच पर विराजमान हमारे आज के डिग्नेटरीज कर्नल मान सिंह जी, डीडीसी चेयरमैन कठुआ, वर्किंग डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल यादव, सभी लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्ष की तरह इस पूरे देश में धन्वंतरि जयंती मनाई जा रही है और इस वर्ष भी आज 2 नवंबर 2021 को ये धन्वंतरि जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। ये धन्वंतरि जयंती जो है ये बहुत समय से ही हर वर्ष मनाई जाती थी, लेकिन क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद में वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने भगवान धन्वंतरि जी को प्रोपेगेटर ऑफ आयुर्वेदा मानते हैं। ये जो समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन में भगवान धन्वंतरि जी की उत्पत्ति हुई थी। एक हाथ में अमृत कलश था और एक हाथ में आयुर्वेद था, तो हम उत्पत्ति उसी से मानते हैं। उसी के बाद इसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में इसको नेशनल आयुर्वेदा डे के रूप में मनाना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस
राधारत्न और धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आयुष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि यहाँ पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट आयुष अफसर हैं उन्होंने बताया भी कि आयुष हमारा जो है आयुर्वेद जो है वो आपका दिनचर्या का एक हिस्सा है। किस तरीके से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, रादर देन बीमार होने के बाद रोग के निवारण की जगह आयुर्वेद जो है वो रोग के रोकथाम की बात करता है कि किस तरीके से हम अपने आप को डे टू डे लाइफ में स्वस्थ रख सकते हैं। और इस बार की जो हमारी थीम भी है वो उसी से एक तरीके से इंस्पायर्ड है कि आयुर्वेदा पर पोषण, किस तरीके से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरीके से हम बेहतर पौष्टिक आहार लेकर अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आयुर्वेद में यहाँ पर आपको बताया गया कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट हमारे जो डेली जो हमारी फूडिंग हैबिट्स हैं वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और किस तरीके से हम अपने पोषक तत्वों को लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें सभी को अपनी किचन को रिविजिट करने की जरूरत है, जिस तरह से हम आयुर्वेद को साथ में रखते हुए अपने आप को एक बेहतर स्वस्थ व्यक्ति बना सकें। आज नेशनल आयुर्वेद डे पर मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप एक बेहतर और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। आप जो पौष्टिक आहार हैं, जो आयुर्वेद की तरफ से जो हमारे आसपास की जो जड़ी बूटियां हैं जिसको और हर जगह देखेंगे आप, ये है कि हर लोकल एरिया में कि आयुर्वेद का बहुत सारा हमारा ज्ञान ऐसा है कि जो कि अभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाया है। बहुत सारा हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, बट अगर आप लोकल एरियाज में देखेंगे तो हमारे हर एरिया में जो कोई भी अगर आपको विलेज मिलेगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी जरूर आसपास में कुछ जड़ी बूटियां होंगी जिसका बीमारी के समय या फिर स्वस्थ रखने के लिए सेवन किया जाता होगा। तो आप सभी को उनको रिविजिट करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम उनका यूज करके ना केवल खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और बल्कि अपने आप को जो अपने पूरे एक समाज को निरोगी बना सकते हैं। तो आज हमारा आयुर्वेद दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कटवा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।